अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एक अहम ऐलान सामने आया यमन और सऊदी अरब की सूरत हाल के हवाले से। इससे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन में एक मुत्तफ़िका करारदाद भी मंजूर कर चुकी है, जिसमें यमन और सऊदी अरब की सूरत हाल पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट का मौक़िफ़ भी सामने आया। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर है, कराची से इमरान फारूक कत्ल केस में 5 साल बाद पहली गिरफ्तारी हुई और कहा जा रहा है कि इस शख्स का नाम मुअज़्ज़म अली है। किस कदर अहम ये गिरफ्तारी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में तफसील से बात होगी। लेकिन सरेदस्त वज़ीर आज़म का जो अहम ऐलान था, जो कुछ ही देर पहले नशर हुआ। शामी साहब, इससे पहले कि हम आपसे तबसरा सुने, तज्जिया सुने, मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो ऐलान, क्योंकि मुख्तसर है, दोबारा से हम चला दें, नाज़रीन दोबारा देख लें जिन्होंने नहीं देखा। देखिए जी वज़ीर आज़म क्या कहते हैं आज। The resolution has affirmed in clear and categorical terms that any violation of the Saudi territorial sovereignty or threat to the two holy mosques a strong response from Pakistan. This assurance has been given despite the massive commitment of our armed forces in the ongoing operation Zarb-e-Azb. And Zarb-e-Azb is the name of the operation which is carried out today by Pakistan against the terrorists, in which hundreds of our brave soldiers and security personnel have laid down their lives. We have already intensified contacts with Saudi Arabia to monitor the ground situation and possible threats to the security and territorial integrity of the kingdom. We believe that the restoration of President Hadi's government will be an important step forward towards establishing peace in Yemen. I also conveyed to the Iranian Foreign Minister, Mr. Jawad Zarif, during his visit to Pakistan on 9th of April, that the violent overthrow of the legitimate government in Yemen by the Houthis had set a dangerous precedent that was fraught with serious risks for the entire region. I also urged him to use Iran's influence to bring the Houthis to the negotiating table. We are also in touch with other GCC countries to assure them that their disappointment was based on an apparent misinterpretation of Parliament's resolution. Pakistan does not abandon friends and strategic partners, especially at a time when their security is under threat. My government continues to follow the policy of fortifying and strengthening the bonds of friendship with the Gulf countries. There should be no doubt about our policy of with the GCC states. Some media reports are speculative and tend to create misunderstanding between Pakistan and its Arab brothers. We have not responded to these speculations because we believe that public comments would be counterproductive. Pakistan will intensify its diplomatic efforts in the coming days in consultation with the leadership of Saudi Arabia to resolve the crisis. Thank you. जी शामी साहब, वज़ीर आज़म का ये ऐलान और पार्लियामेंट की करारदाद दोनों में कोई फ़र्क है? देखिए, वज़ीर आज़म ने आज एक तवील मुलाकात की आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से। उसमें हमारे खारजा अमूर के मुशीर सरताज अजीज़ साहब भी मौजूद थे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी थे और वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी थे और कुछ दूसरे हुकाम भी होंगे। उसके बाद वज़ीर आज़म ने मुख्तसर ऐलान पढ़कर सुनाया। ठीक, जो पार्लियामेंट की करारदाद है वो एक बड़ी अच्छी करारदाद है, 12 नुकात हैं उसके। जी हाँ, बिल्कुल। और उनमें कोई नुक्ता ऐसा नहीं है कि जिस पर आप ये कहें कि ये बेजवाज़ है, बेमहल है। सिर्फ जो 8वां नुक्ता है ना जी,
उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान डिजायर्स दैट पाकिस्तान शुड मेंटेन न्यूट्रलिटी इन द यमन कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, अब ये जो है पार्लियामेंट की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान यमन के तनाजे में न्यूट्रल रहे, गैर जानबदार रहे, ठीक, ताकि फरीकैन जो हैं उनके दरमियान एक डिप्लोमेटिक रोल जो है वो अदा कर सके क्राइसिस को खत्म करने। बिल्कुल ये लफ्ज है। इसमें जो ये लफ्ज न्यूट्रलिटी आया है ना, अच्छा, इसने बाकी सारी करारदाद को एक तरफ रख दिया और पूरी दुनिया में मीडिया जो इस लफ्ज को ले उड़ा। गोया ये कहा गया कि सऊदी अरब के और यमन के दरमियान पाकिस्तान जो है वो गैर जानबदार हो गया और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। और पूरी दुनिया में बीबीसी में भी और दूसरे हमारे जो मीडिया अदारे हैं सब में ये जनाब इस पर बगलें बजाई गई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फासला पैदा हो गया। यहां लफ्ज न्यूट्रल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। क्या मुतबादल हो सकता था? कोई मुतबादल नहीं हो सकता था। अपने आप को इन्वॉल्व किए बगैर, अमली तौर पर इन्वॉल्व किए बगैर पाकिस्तान जो है वो ये किरदार अदा करेगा, क्योंकि इस लफ्ज से ये मुगालता पैदा हुआ कि जो सऊदी पोजीशन है ना यमन के तनाजे में, बिल्कुल हम उसके मामले में गैर जानबदार। हालांकि आज के बयान में सऊदी पोजीशन की हमने हिमायत की। हाँ, सऊदी आज वजीर आजम ने जो बयान जारी किया है उसमें इस बात की वजाहत कर दी है कि हम तनाजे में गैर जानबदार नहीं। ये जो इबहाम था ये, है ना? हाँ, बिल्कुल। इससे पहले ये वजीर आजम की तरफ से ये बात कई बार कही जा चुकी है। तुर्की में भी उन्होंने कही, पाकिस्तान में भी कही कि ये जो कबाइल हौसी इन्होंने जो बगावत की है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट के खिलाफ, हादी मंसूर की जो हुकूमत थी वो एक इत्तेफाक राय से कायम हुई थी, बिल्कुल, और जो एक अपसर्ज हुई थी पुरानी हुकूमत के खिलाफ, उसके नतीजे में पुराने सदर को इख्तिदार छोड़ना पड़ा था, अब्दुल्ला सालेह को। हाँ, अब्दुल्ला सालेह को। और हादी मंसूर जो थे उसकी जगह आए थे, वो नायब सदर थे जब सना में तहरीक जोर पर। हाँ जी, और इनका इत्तेफाक राय से इनको सदर बनाया गया था। ठीक है, इसलिए ये एक कबीले की या एक अंसर की बगावत से ये सूरत हाल खराब हुई है और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वहां की, वो बहाल होनी चाहिए। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान ने जो सऊदी मौकिफ था यमन के हवाले से उसको तस्लीम करता है, उसको तस्लीम की, उसकी तायद की, उसको उसकी तायद करता है। ठीक, लेकिन अमली तौर पर वो इस जंग में शरीक नहीं है। ठीक, ये बड़ा एक बुनियादी बात है। एक पहली बात तो ये समझे कि सऊदी अरब ने जब ये कार्रवाई की है हौसीस के खिलाफ, तो पाकिस्तान से उसकी कोई मुशावरत नहीं हुई। बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल हम ये कार्रवाई करने वाले हैं और इस तरह एयर रेड करने वाले हैं। सऊदी अरब को अपने फैसले करने का हक हासिल है। ठीक, इसी तरीके से पाकिस्तान को अपने फैसले करने का हक हासिल है। ठीक, यहां जैसे मसलन कारगिल में लड़ाई शुरू कर दी, तो कारगिल में लड़ाई शुरू करके अगर हम तवक्को रखें कि सऊदी अरब अपने तैयारे भेज दे ताकि वो इंडियन टेरिटरी में जाकर और बमबारी करें, तो ये तवक्को दोस्ताना नहीं हो सकती। ठीक, उसके लिए जरूरी है कि पहले मुशावरत की जाती। देखिए, पाकिस्तान का जो दिफाई मामला है एक दूसरे के साथ, वो है अगर सऊदी अरब की टेरिटरी में कोई मदाखलत करेगा, अगर सऊदी अरब के जोग्राफियाई हदूद में कोई शख्स घुसता है, करारदाद में भी 10 नंबर नुक्ता ये कहता है, ठीक है ना, तो हम पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है कि हम उसका दिफा करेंगे। अब और देखिए, अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो है, हाँ, वहां के नायब वजीर खारजा ने भी एक बयान जारी कर दिया जज्बाती सा, अनवर करकाश साहब। हाँ, और वो तो पहले कुछ दुबई तो कुछ थोड़ा सा नाराज हमसे यूं भी है कि वो ओलंपिक्स का मामला था ना, तुर्की के और दुबई के दरमियान टाई पड़ी थी, तो हमने तुर्की को वोट दे दिया था। अगरचे तुर्की वो हार गया, लेकिन उस वक्त भी शायद मुनासिब होता दुबई और तुर्की के दरमियान हम गैर जानबदार न्यूट्रलिटी वाला, ठीक है। तो वहां बहरहाल तुर्की से अपने ताल्लुकात की वजह से अगर उनको वोट दे दिया, उससे कुछ नाराजगी पैदा हुई। तो मैं रोकता हूं आपको ताकि सेर असल गुफ्तगू मजीद हम कर सकें, लेकिन यहाँ नाज़रीन वक्त है प्रोग्राम एक ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की करारदाद थी उस पर मुत्तहिदा अरब अमारात के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं उनका बयान ज़ेर बहस था भी, और शामी साहब ये कह रहे थे कि उनका गुस्सा पुराना है। तो फिर जो निसार साहब को जो बयान जवाब में आया, और फिर जो सऊदी बयान था वो तो उस कदर संजीदा या बरहमी पे मबनी था। बता रही है वजीर खारजा नहीं है, नायब वजीर खारजा, नायब वजीर खारजा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। हाँ, तो बहरहाल देखिए असल में एक दोस्ताना गुस्सा है ना, तो उसका अजहार उन्होंने कर दिया, तो चौधरी निसार अली साहब ने मजीद दोस्ती का सबूत दे दिया। ठीक, चलिए बात बराबर हो गई। ठीक है। अब अगला मसला वो जो आप लफ्ज के असल बात क्या है, बात यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ना, उसको तो ये ताना देने की जरूरत ही नहीं थी, कोई मसला दरपेश ही नहीं हुआ। खुदा ना खास्ता को मुत्तहिदा अरब अमारात को किसी ने धमकी दी है या सऊदी अरब को किसी ने धमकी दी है और पाकिस्तान उससे पीछे हट गया, ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने कभी भी, जो पाकिस्तान के कई जंगें लड़नी पड़ी है ना, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात को ये नहीं कहा कि आप आके इसमें जंग में शरीक हो जाए हमारे साथ। उसके अपने तकाजे हैं जो उनसे उन्होंने हमारा साथ देना था वो दिया, और आज भी देते हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर दाम में दर में सुखने ये इमदाद सारी होती है एक दूसरे को। और आज देखिए, मगर ये बात कि आप यमन के एक बागियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उस कार्रवाई को भी सपोर्ट किया है, बिल्कुल, और कहा है कि आपको एक इलिजिटिमेट जो बगावत है उसको तस्लीम नहीं किया जा सकता बराबर के। ये भी कहा कि रिस्टोर होनी चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन असल बात यह है, पाकिस्तान ना अपने तैयारे यमन में भेज सकता है, ना अपने सिपाही यमन में भेज सकता। तो क्या सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये कहा है कि वो बाकायदा तौर पर यमन में पाकिस्तान आए, फौज भी लेकर, तैयारी भी लेके? देखिए, जब दोस्ताना तवक्कुआत तो आपको मालूम है ना बहुत हो जाती हैं, और बगैर इजहार के। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो गुफ्तगू की है उससे भी ये अंदाजा होता जो वहाँ की है। हाँ, उनका पार्लियामेंट। हाँ। लेकिन सऊदी अरब की मोहब्बत सारी अपनी जगह है। सऊदी अरब की क़यादत को भी इस बारीक फर्क को मलहूज रखना चाहिए। लेकिन मैं तो इस बात का कायल हूं कि गल्फ कंट्रीज जो है उनके साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लेना चाहिए नेटो की तर्ज पर। ठीक, ये हो जाना चाहिए। जब कोई उनको खतरा दरपेश हो तो हम एक जॉइंट एक्शन ले और एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर करें, ये हो सकता है। ठीक, अगर नेटो बन सकता है तो ये हमारा एक अलायंस क्यों नहीं बन सकता। और आज भी एक दो तरफा मुआहदे इस तरह के मौजूद हैं या अंडरस्टैंडिंग्स मौजूद है कि अगर इन मुल्कों को कोई खतरा होगा तो पाकिस्तान इनके साथ होगा, सऊदी अरब के साथ होगा। मगर इसको ये स्ट्रेच ना किया जाए कि हम यमन में अपनी फौज भेजें। देखिए, एक तो यहां ज़रबे अज़्म, उसमें हमारी फौज मसरूफ है, जिक्र भी किया वज़ीर आज़म ने। या वो एक वहां और तरह की एक्टिविटी है, ठीक, एक और तरह की गुरीला कार्रवाई में, वो एक तरह का अफगानिस्तान है। तो इसलिए पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए, इस पे दो राय नहीं हो सकती। बागियों की सरकोबी होनी चाहिए, इस पे दो राय नहीं हो सकती। लेकिन हमारी दुआएं, हमारी आशीर्वाद उनके साथ है। हम ये काम, और जब इनिशिएटिव लिया है सऊदी अरब की तरफ से, तो उस इनिशिएटिव जो है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए सऊदी क़यादत को। बिल्कुल ठीक। अब जो बात थी, जो बोन ऑफ कंटेंशन अपेरेंटली वो लग रही थी, जो लफ्ज आपने भी अभी पॉइंट आउट किया, न्यूट्रलिटी को, शिक नंबर 8 जो है, तो वो ये लफ्ज आया कहाँ से? असल में ये जो न्यूट्रलिटी था ना, गैर जानबदार रहेंगे, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ना, या महमूद कुरैशी साहब और उनके हमनवा, वो उन्होंने इस बात पर शदीद जोर दिया वजह कि ये न्यूट्रलिटी का लफ्ज डाला जाए। अच्छा, अब उसके जो पीटीआई के भेदी है ना, वो उसकी दो वजह बयान करते हैं। अच्छा, पर एक तो बड़ी सादा सी वजह है कि आपकी ये राय हो सकती है दयानतदाराना कि पाकिस्तान को यमन के अंदर किसी तनाज़े में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और दूसरी वजह, लेकिन उसके लिए भी दूसरा लफ्ज मुनासिब हो सकता था, इस तरह का लफ्ज जिसके दूसरे मतलब निकाले जा सके और सुर्खियों में जिसको जगह दी जा सके और जो पूरा जो रेजोल्यूशन है ना उसको डोमिनेट कर जाए, वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। दूसरी वजह यह हो सकती है, और ये बताई जाती है और पीटीआई के अंदर डिस्कस होती रही है, अच्छा, कि ये अगर नवाज शरीफ साहब और हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के
बिल्कुल करीब आ गए तो हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को ऐसी सपोर्ट मिल जाए जिससे उनकी जड़ें थोड़ी गहरी हो जाए, ठीक, और उनकी हुकूमत मुस्तहकम ना हो जाए ठीक, इस सपोर्ट के नतीजे में। ठीक। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके लिए साजगार सूरत ना पैदा हो जाए। अब पीटीआई के अंदर जो ये राय है, इसमें भी दो लोग, एक कह रहे हैं कि भाई ये देखिए ये पॉलिटिक्स नहीं है, आप सियासत ना करें, नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखें, सही, पाकिस्तान के मुफाद को, ठीक, और दूसरे नहीं कहते नहीं सियासी मामलात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो एक राय तो ये है कि दयानतदारी से ये समझा जा रहा था कि ये लफ्ज इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक, और दूसरी राय ये है कि नवाज शरीफ साहब को फंसाने के लिए, थोड़ी हुकूमत को सुबकी हो, थोड़ी सी यानी थोड़ी सी ठीक, धक्का लगाने के लिए, ठीक, और ये एक थोड़ी खलीज पैदा हुई। फिर उसके नतीजे में आज नवाज शरीफ साहब को खुद वजाहत करना पड़ी, और एक अच्छा बयान दिया उन्होंने, मुख्तसर, कोई सवाल नहीं लिया, कोई मामलात में उलझे नहीं, और ये भी कहा कि हमने इस पर कोई, जब ये इसको करारदाद से ये मतलब निकाला गया तो हमने उस पर कोई पब्लिकली कमेंट नहीं किया। हाँ, यानी जब एतराज उठ रहे थे मीडिया पर तो हमने इस पे कोई उससे भी और उलझाव पैदा होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप समझिए पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हाँ, मौक़िफ़ सऊदी अरब का दुरुस्त है, जो बाकी कबीले हैं उनको हुकूमत को बरतरफ करने का हक नहीं दिया जा सकता, ठीक, लेकिन पाकिस्तान अपने सिपाही नहीं भेजेगा यमन में। यमन में हाँ, सऊदी अरब को खतरा हुआ, सऊदी अरब को इलाके सऊदी अरब अगर महसूस करता है, हाँ, और इसीलिए अब कहा कि भाई थोड़ी सी बास दोस्तों ने ये तजवीज पेश की है, और हुकूमत के हलकों में भी वजीर आजम भी इस पे गौर कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी इस पे गौर कर रहे हैं। वो क्या कि भाई वजीर आजम जो है एक आला रुकनी वफद के साथ सऊदी अरब जाएं, अच्छा, और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसमें शामिल हों, अगर मुशावरत की इस दर्जे पर जरूरत पड़े, और समझा कि दोस्तों के साथ मुशावरत भी जरूरी होती है, उनको एतमाद में लेना भी जरूरी होता है, और उनको अपनी लिमिटेशंस जो है उनसे भी एहसास भी दिलाना पड़ता है। देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं हम, ठीक है ना, हमारी जान हाजिर है, लेकिन जाहिर है अगर जान जो है निकाल के दे दी जाए तो किसी काम तो नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ हमें बढ़ना है प्रोग्राम में, एक ब्रेक की जानी, मजीद बात होती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, वज़ीर आज़म ने दो और अहम बातें भी की। उन्होंने कहा कि हमारे जो खलीजी इत्तेहादी हैं वो पार्लिमानी करारदाद को ठीक तरह नहीं समझ सके, और दूसरा, ईरान पर हमने जोर दिया है कि हौसियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए इक़दाम करे। उन्होंने उस रेफरेंस दिया अपनी मुलाकात का जो उनकी हुई जावेद ज़रीफ साहब से, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं, जावेद ज़रीफ। हाँ, ये दुरुस्त बात है, उसमें एक अभाम तो आया ना, न्यूट्रल का लफ्ज़ जो है उसने एक अभाम पैदा किया है। ठीक, गोया न्यूट्रल मौक़िफ़ पर नहीं है हम। अब देखिए, ये बुनियादी बात है, न्यूट्रल मौक़िफ़ पे नहीं है, मौक़िफ़ पे नहीं है, मौक़िफ़ पे तो सऊदी मौक़िफ़ के हम ही हैं। हाँ, आज वाजे कर दिया, ठीक है ना। ठीक, हम ये यानी हम इसमें दस्तकश जिस चीज से हो रहे हैं वो ये अमली तौर पर हम नहीं लड़ेंगे वहां जाके, तो अमली, यमन में, ठीक है, यमन में, ठीक, लेकिन सऊदी अरब को खतरा होगा तो बिल्कुल लड़ेंगे, चाना बचाना। कुछ लोग हत्ता कि यूएई जो है अगर उसको भी खतरा होगा तो वहां भी लड़ेंगे, ठीक, कोई ऐसी बात नहीं। उनकी वो नायब वज़ीर ख़ारिजा जो है वो बिल्कुल खातर जमा रखे। करकाश साहब, ये कुछ लोग इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं ना, कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियली वहां पर कुछ नहीं भेज रही और वाजे कर दिया, तो क्या प्राइवेट सतह पर कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा सकते हैं? नहीं, देखें ना, ये तो अब अगर सऊदी अरब अपनी फौजें भेजता है यमन में और दूसरे अरब मुल्क ऐसी इसकी जरूरत महसूस करते हैं, तो कहीं दुनिया भर से रज़ाकार जा सकते हैं, वहाँ सऊदी की मदद पाकिस्तान से भी जा सकते हैं अगर जाना चाहे कोई। अब कई लोग जज्बाती हैं, बड़े कहते हैं हम जाएंगे। देखिए, ये जो अफगानिस्तान में जब जहाज जारी था तो उसामा बिन लादेन जो था वो कोई परमिशन तो थोड़ी आया था, और दूसरे लोग जो अब बेशुमार मुल्कों से लोग लड़ने के लिए पहुंच गए थे, तो वो तो एक और बात है। प्राइवेट कोई शख्स कहीं भी जा सकता है। असल मामला यह है कि रियासत जो है वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकती इस तरह के कामों की, और उन कामों की जो उनकी इसकी मुशावरत से शुरू ना किए गए हों,
वहां अपनी उंगलियां जलानी नहीं चाहिए ठीक। और अपने भाइयों की उंगलियां जो हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आप देखिए फैसल लतीफ साहब हैं फैसलाबाद से, वो कहते हैं कि आपने जो कुछ कहा है पीटीआई के बारे में भी और सऊदी अरब के मामलात के बारे में भी बिल्कुल हमारे जज्बात की तर्जमानी है। अच्छा। और कैप्टन उमैर मियां कहते हैं हाँ। ठीक है, टू प्ले ऑन बोथ एंड्स ठीक। अगेंस्ट द मिडल, तो ये मतलब दोनों तरफ खेल सकते हैं आप। ठीक। चलिए ऐसा भी होता है, बहुत बार तो खेलना पड़ता है। अब ये पूछा जा रहा है, जुनैरा पूछ रही है कि क्या जो इबहाम था, जो तलखियां थी, वो दूर हो गई वज़ीर-ए-आज़म के स्टेटमेंट के बाद? नहीं, कोई तलखी तो ऐसी है नहीं, होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता हम कोई मुखालिफ नुक्ता नजर तो रखते नहीं है। और वजीर आजम ने कह दिया कि ईरानी वजीर खारजा को उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया। देखिए इस वक्त जो अल्जाम जिस पे लग रहा है ना, वो ईरान पर लग रहा है कि उसके जनाब लोग, यहां तक कहा जा रहा है कि उनके लोग पकड़े गए हैं, क्या 2 अहम ऑफिशियल्स की पकड़े गए हैं, ये कहा जा रहा है। फिर उनके जहाज जो है उनकी मूवमेंट हो रही है, और उनके जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी सुनगन हो रही, वहां पहुंचे हुए हैं। तो ईरान जो है उसको चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह करे और अपने आप को इस सूरत हाल से पीछे करे। देखिए यमन में ईरान की मदाखलत जो है वो इस खित्ते को मजीद बेतवाज़ुन कर देगी, इसमें खलफशात पैदा करेगी। ये काम नहीं होना चाहिए और आप अपने घर का मामला दुरुस्त करें और कोशिश करें कि यमन जो है उसमें जो लिजिटिमेट हुकूमत है वो कायम हो जाए और मामला खराबी की तरफ। सालिह बिन अजीज साहब आए हुए हैं जो वजीर मजहबी अमूर हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के दौरे पर, तो वो उनसे मनसूब था कि वो कुछ अहम पैगाम लेके आए सऊदी शाह का। हाँ, पैगाम होगा, उनकी अपनी एक तवक्कुआत है जो उनको चाहिए, जो उनकी मुआवनत की जरूरत है। हर किस्म की मुआवनत करनी चाहिए, ठीक, और हर किस्म का ताउन करना चाहिए। सवाए इस बात के, अगर कल पार्लियामेंट ये फैसला करे कि हमने यमन में भी जाना है तो आप जा सकते हैं, अभी फैसला नहीं है ये, और पाकिस्तानी कौम का मूड भी नहीं है। ठीक है। और मेरी तरह के मुताबिक हमारी फौज जो है वो भी इस वक्त इस ख्याल में नहीं है। देखिए यमन में जाके लड़ना एक बिल्कुल दूसरी बात है, और सऊदी अरब की और मुत्तहिदा अरब अमारात और जो हमारे खलीजी मुल्क हैं उनके दिफा में ताउन करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे थे आज वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान से पहले, कुछ ये भी कयास आ रही थी कि पार्लियामेंट करारदाद अपनी जगह, लेकिन खुद से फैसला कर लिया गया कि फौज भेजी जाएगी, तो लिहाजा एक बार फिर से पार्लियामेंट को पसे पुश डाल दिया गया। तो आज देखिए पार्लियामेंट जो है उसकी करारदाद कोई बाइंडिंग नहीं होती, उसका तो वो करार, ये जो अगर बाज़ों का तो करारदाद मंजूर हो जाती है, ठीक, और उस पर कानूनी तौर पर हुकूमत पाबंद नहीं होती कि उस पर हरफ पर हरफ अमल करे। ठीक, लेकिन जब आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाते हैं, उसकी ख्वाहिश का आज़ार होता है, तो आपको अपनी पॉलिसी उस ख्वाहिश के दायरे में बनानी होती है। बिल्कुल ठीक। आप उसको बिल्कुल पसे पुश नहीं डाल सकते। ठीक। और आप नहीं उसमें, और बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब के दिफा के लिए हर इकदाम करेंगे, और हुकूमत आज़ाद है, आप पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, जो इकदाम है वो करे, सवाए इस बात के कि हमारे बूट जो है फौजी वो यमन की सरजमीन पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अब चौधरी निसार साहब का जिक्र करते हैं। आज के दिन ये 2 अहम खबरें सामने आई, एक तो पहले वज़ीर दाखिला का बयान और फिर वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट। उन्होंने कहा जो डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस है जो 2010 में कत्ल हुए थे नॉर्थ लंदन में, उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि एक इंतहाई अहम जो शख्स है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये वही शख्स है जो सहूलतकार था उन 2 लोगों के लिए जिनको यहाँ से वीज़े के ज़रिए ले जाया गया, उन्हें वहाँ पर लंदन में सेटल किया गया, उनको हज़ारों पाउंड्स दिए गए, उनके ज़रिए फिर ये काम, उनका कत्ल जो है वो सर अंजाम पाया गया। तो उनको गिरफ्तार कर लिए, कल अदालत में पेश करेंगे। कहते गए वज़ीर दाखिला साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा वो भी आप सुन लें, देखिए जी। पिछले तकरीबन 1.25 साल से डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक इम्तिहान बना हुआ था। आज मैं ये आपको बताने चला हूं कि वो जो 2 लोग थे जिनके बारे में एक शक व शुबा का इजहार किया जा रहा था, वो तो बेचारे गरीब लोग थे, वो तो पहली दफा इंग्लिस्तान गए थे। उनको इंग्लिस्तान ले जाने में, उनके वीजे का बंदोबस्त करने में, उनके वहां
कोर्सेज का बंदोबस्त करने में और उनको पैसे दिलाने में। उनके तो शायद इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास कि वो इस्लामाबाद बाय एयर आ सकें। वो यूके गए, वहाँ वो रहे, हज़ारों पाउंड्स उन्होंने फीस अदा की। जो बुनियादी कैरेक्टर था, जो बुनियादी किरदार था जिसने ये सब कुछ किया, हमारी तफ्तीश के मुताबिक सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वीजा की फरामी और बाकी जो मामलात तय किए, उसके लिए एक शख्स मतलूब था। गुज़श्ता 1 साल से हमारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी कोशिश कर रही थी कि वो गिरफ्तार हो, क्योंकि वो बुनियादी किरदार है, सेंट्रल किरदार है। तो मुझे इस बात पे इत्मीनान है कि वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। वो शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है और मुअज़्ज़म अली का नाम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जो इस मौजू पर बनी थी उसमें भी लिया गया और इनको 2010 में इफ्तिखार हुसैन की कॉल भी गई थी। देखिए, बात यह है कि इमरान फारूक एमक्यूएम के बानियों में से थे। बिल्कुल। अजीम तारिक एमक्यूएम के बानियों में से थे, चेयरमैन थे, और अल्ताफ हुसैन साहब के बुनियादी साथी हैं, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस तहरीक की बुनियाद रखी। अब अजीम तारिक जो है उनको कत्ल किया गया उनके घर के अंदर। इमरान फारूक को लंदन में मारा गया। ठीक। अजीम तारिक का खून तो था, वो तो खून खाक नशीन न तर इसके खाक हुआ कि पाकिस्तान में उनका खून बहा था और यहाँ तो जनाब उस तरह पीछा नहीं किया जाता, फाइल बंद कर दी जाती। ठीक। अब उसकी भी कुछ सुनगुन हो रही है, कुछ लोग एतराफ कर रहे हैं जो कि हम उसमें मुलव्वस थे और किस तरह सूरत थी। इमरान फारूक को कत्ल किया गया इंग्लैंड में, लंदन में। अब लंदन में तो फिर जो कातिल है उसका पीछा किया जाता है, खा कितने बरस गुजर जाए, और लंदन पुलिस जो है इस नतीजे पहुंची 2 लड़के जो थे जो कातिल थे और वहां से भाग के यहाँ चले आए वापस, और फिर उनको जो सहूलतकार था एक मुअज़्ज़म अली नाम का, वो पकड़ा गया है। ये हमारी एजेंसियां जो हैं और हमारे तफ्तीशी अदारे जो हैं उनको दाद देनी चाहिए। ठीक। कि उनको बिल आखिर उन्होंने पीछा किया, उसको पकड़ा, यानी आप समझे सहरा में से आपने वो सुई तलाश की ना। ठीक है। और इससे यह भी अंदाजा होता है कि हमारी तफ्तीशी अदारों की कितनी सलाहियत है, और अगर वो किसी बात के पीछे लग जाए, ठीक, और सियासत जो है उनके हाथ ना रोक दे और उनको बांध न दे, तो वो मुजरमत का ताक़ुब कर सकते हैं। साहब, यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ेगा। ला सकते बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। मजीद बात एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में वज़ीर दाखिला का यह कहना था कि बहुत अहम पेशरफ्त होने जा रही है आने वाले चंद दिनों में। कल इस मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा, इसका रिमांड लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि किस केस में रिमांड लिया जाएगा। दूसरा, शामिल साहब, ये कन्फ्यूजन थी कि ये बाबर चुगताई साहब ना हो जो शख्स गिरफ्तार हुआ, क्योंकि नाम नहीं लिया गया। नहीं, वो तो जाहिर है कि खबर तो ये आई है कि मुअज़्ज़म अली खान है। बहरहाल कल तस्दीक हो जाएगी इस बात की। देखें, ये इमरान फारूक जो कत्ल केस है, इसने किस किस को अपनी गिरफ्त में लेना है अभी आप कुछ नहीं कह सकते। इंतजार कीजिए, बस खून जो है ना वो पीछा करता है और अपना इंतकाम लेकर रहता है, इतनी बात समझ लीजिए। ठीक। जहां भी कातिल छुप के बैठे, ठीक, बहरहाल लगता है कि कानून की गिरफ्त में आके रहेंगे। ठीक है। ये शामिल साहब सना इकबाल साहिबा हैं, सैयदा आलिया अहमद हैं, खलीलुल्लाह फ़हीम बेग और मोहम्मद उबैद हैं, जो यमन की सूरत हाल के हवाले से जो हमारा तबसरा था उस पर अपने सवाल जवाब और कुछ फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन बिजाज अदर साहब को भी मैं ट्वीट पढ़ा था, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं, वो कहते हैं कि ये जो सब कुछ अभी पेशरफ्त हुई है उसको मैं तो यूँ कहूँगा कि मैनेजिंग रिस्क थ्रू एम्बिग्विटी। देखिए, अब हम भी बातों का ज़रूरी होता है, और आप देखिए ये डिप्लोमेसी में और शायरी में अभाम की जरूरत होती है बहुत। और उनको फिर तुर्की बतुर्की जवाब भी दिया जुबैर बड़ाई साहब ने। वो कहते हैं यस देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट इन फॉरेन पॉलिसी। ये हिसाब का सवाल नहीं है, ठीक, कि 2 +2 4 हो जाए। सही। अब देखिए, ये हमारे ये साहब है राना तंजील साहब जी, मनावाला से, वो कहते हैं जनाब ये अरब मुल्क जो है ना, इनके पास बड़ा असला है,
ये अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं, तो लड़नी भी चाहिए। तो हमको लड़नी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हम उनके दोस्त हैं। अगर उन पर कोई हमलावर होगा तो हम उनके साथ होंगे। राणा साहब राणा बने, कोई परेशान ना हो। ये शफीक मेहता साहब हैं जी, सऊदी अरब से। नवाज मलिक साहब हैं, ये कहते हैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सऊदी अरब जो है उसको नाराज नहीं करना चाहिए, हर कीमत पर उसका साथ देना चाहिए। भाई ये बात दुरुस्त है, सऊदी अरब का साथ देंगे, देना चाहिए, और हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, लेकिन सऊदी अरब की हदूद के अंदर। और सऊदी अरब ने अपेरेंटली कोई बज़ाहिर यानी बिलवास्ता कोई किसी नाराजगी का इजहार भी तक ऐसे नहीं किया जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर का बयान सामने आया था। शामी साहब, ये इंजीनियर शफीक मेतला साहब हैं और ये सऊदी अरब से ही हमें फोन कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम शफीक मेतला साहब, कहिएगा जनाब। बस मेरा तो एक पॉइंट ये है कि सियासी और मजहबी जमातों में मिलिटेंसी खत्म करने के लिए मीडिया को अपना अब भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। आपके प्रोग्राम में हमेशा जिक्र होता है, ठीक, और उम्मीद है इंशाअल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि शायद सियासी जमातें और मजहबी जमातें ये महसूस करें कि वो तेजी से गैर मकबूल हो रही हैं अगर मिलिटेंसी को जारी रखेंगे। ठीक है जनाब, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शफीक मेतला साहब, बहुत शुक्रिया। अगले जी कॉलर है शफकतुल्लाह सोहेल साहब है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से जी। ये कहते हैं कि ये भाई कुछ अबहाम तो है, कंफ्यूजन तो है। हाँ जी, कुछ जरूरी नहीं कर कंफ्यूजन दूर कर दिया जाए, थोड़ा सा तो रहना भी चाहिए। जिंदगी जो है उसमें रंग हो जाती है। ये जो मामलात होते हैं स्टेट्स के, रियासतों के, ये कोई वैसे ही होते हैं जैसे शामी साहब अर्ज कर रहे हैं। शामी साहब, ये मौजम अली साहब है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम मौजम साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहिएगा। फरमाइए जनाब। मौजूद अली नवाज बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जनाब बहुत शुक्रिया, तस्दीक कर दिया आपने, बताइए जी। असल ये है कि सर आप ये कह रहे हैं जो मुल्क खुद आजाद होते हैं ना सर, वो मुल्क फैसला कर सकते हैं। हमारे बेकारी मुल्क जैसे हम बिल्कुल बेकारी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। हम आजाद मुल्क है, दुनिया में बेशुमार मुल्क मकरूज है, हर मुल्क मकरूज है। नहीं, इस तरह की बातें ना किया करें आप, अपने मुल्क को अपने हाथों रुस्वा करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अपनी बुराइयां दिखती हैं हमें, लेकिन उनको बेहतर करना चाहिए। कौन सा मुल्क है जो मकरूज नहीं है, जो कर्जा नहीं लेता? हम कर्जा लेते हैं तो वापस भी करते हैं। डॉक्टर हुसैन पराचा साहब कह रहे हैं जी जी जनाब, ये आपका बड़ा बैलेंस्ड तबसरा था। अल्लाह का शुक्र है, उनको भी कोई चीज किसी चीज में तवाज़ुन नजर आया। आज उनकी हमसे एग्रीमेंट किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। बस टूट कर चाहने लगते हैं हम तैयार हो जाते हैं कि तवाज़ुन खो बैठते हैं। और ये गुलाम कादिर साहब हैं जी, ये बात करना चाहेंगे शिकारपुर से। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम सलाम सर, ये शामी साहब से मेरा दो सवाल है। यमन की बागियों को कौन सपोर्ट कर रहा है और किसका इसमें मुफादात है? दूसरा सवाल ये है कि इस्लामी कंट्री लड़ाने में कौन सी तीसरी कुव्वत की मुफादात शामिल है? ठीक है गुलाम कादिर साहब, इनके दो सवाल हैं जी। हूसियों को सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन लड़ा रहा है, और पूरी इस्लामी दुनिया जो है उसको डिस्टेबलाइज करने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, किसके मफाद है? बड़े दिलचस्प और अहम सवालत है आपके। बहरहाल आप माशाल्लाह लगता है कि आप भी बड़े दानिश्वर हैं और आपकी आंखें भी देख रही हैं, तो इसलिए आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है आपने अपना जवाब जो है पा लिया शामी साहब के लफ्जों में। जरूरी नहीं होती कि हर चीज का नाम लिया जाए, कुछ चीजें पर्दे में भी रहनी चाहिए। ठीक है शामी साहब, ये हमारे साथ जुनैरा साहबा का मैसेज आया हुआ यहाँ पर। वो ये कहती हैं कि ये जो मिसिंग लिंक था कि वज़ीर आज़म की स्पीच का मकसद क्या था और पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन है उसका मकसद क्या था, उसमें जो मिसिंग लिंक था वो आपने एक लफ्ज़ के जरिए बयान कर दिया। बहुत शुक्रिया जी आपके फीडबैक का। आमिर अहसन खान कह रहे हैं कि हमें नवाज शरीफ साहब को बस मुत्तहिद होकर सपोर्ट करना। डॉक्टर दानिश हैं जी अटक से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कहिएगा। सर मेरे एक मसला था कि जो ये एंट्री टेस्ट होते हैं जी बोर्ड के एग्जाम के बाद, ठीक, तो एक तो वैसे ही ये बड़ी एक रहती वाली बात है कि बोर्ड के एग्जाम के बाद एंट्री टेस्ट, फिर हर यूनिवर्सिटी हर मेडिकल कॉलेज का अलग टेस्ट होता है, उसकी ये काफी सारी वो फीस लेते हैं और हर जगह अलग अलग टेस्ट देना पड़ता है। ये यहाँ तो एक टेस्ट होता है मजमूई तौर पे, पहले होता था, अब अलग अलग टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन एंट्री टेस्ट तो सारा एक जॉइंटली होता है, फिर उसमें लोग क्वालिफाई करते हैं। इस पे फिर यानी आप कोई वाज़े बात करें कि क्या चाहते हैं, किस तरीके से। चले अगली बात में देखिए, आज अभी सलीम मंसूर खालिद साहब का फोन आया, बांग्लादेश में जमात इस्लामी के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो कमर हुसैन कमरुज़्ज़मान साहब को भी फांसी पे, इसके अलावा दो और इसी जमात के लोग जो एहतजाज करते हैं उनको पूरा एहतजाज जारी है उस पर। और
2 अफराद जो हैं नौजवान मारे गए हैं। ये कमरुज़्ज़मा की जो शहादत है इसने हमें एक और जख्म लगाया है और एक और चरका लगाया है। और बांग्लादेश की ये जो हुकूमत है इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये तारीख भी इससे जवाब लेगी इंशाल्लाह और अवाम भी इससे हिसाब लेंगे और इसका ये जो जुल्म है वो रंग ला के रहेगा। और हम इसका जिक्र करना चाहते थे तफसील से और फिर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं सुहेल साहब लाहौर से बात करना चाहते। सुहेल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे आपकी कॉल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। इजाज़त दीजिए। अजमल जामी और मुजीबर रहमान शामी साहब को आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।